Hello students, beta in this video we will learn to find magnetic field in another way, that is called Ampere's circuital law. Beta, this is not something new from Watt-Sabat law, because both law relate the magnetic field and the electric current. Both law express the same physical consequences of steady current. But as far as we remember, in electrostatics, Gauss's law beta, that was connected with Coulomb's law. Here also, Ampere's circuital law is connected with Watt-Sabat law. Beta, in that case, to find electric field intensity in Gauss's law, we considered a closed surface. Here, to find magnetic field, we have to consider closed loop. The statement closed line integral of magnetic field around a current carrying conductor is absolute permeability times the total current threading the closed loop. Okay, let me write the statement of Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. Closed line integral of magnetic field around the current carrying loop, the current carrying conductor is equal to absolute permeability mu naught times the total current threading the loop. First of all, beta, let's understand what is closed line integral of magnetic field. Closed line integral of magnetic field. This is nothing but it can be expressed as P dot dl. Okay, this is called closed line integral of magnetic field. In case of electrostatics beta, we have seen similar way E dot dl, but in that case, for example, suppose this is electric field, one goes from A to any loop and reaches there only, then what will be ideal? E dot dl. This is also line integral of electric field intensity. This becomes 0 beta. How come? Because here, when we consider E dot dl, it is a physical quantity potential difference beta. This is what potential difference. When one go from A and reach there, that is same potential. Same potential means potential difference becomes 0. What would be in case of V dot dl? It is non-zero beta. V dot dl is non-zero. Okay, and it is called closed line integral of magnetic field. Let us see. सपोज करो बेटा
ये दो करंट है, करंट वायर है, एक और बना लिया मैं 3, एक और बना लिया मैं 4, ऐसे 4 करंट वायर बना दिया, स्ट्रेट करंट वायर है। बट हमने लूप ऐसा लिया कुछ, ठीक है। One, 2, 3, 4. Let us consider it I1, I2, I3 and I4. See, when we consider closed integral, line integral of magnetic field, so at any point when we talk about magnetic field, does it be only due to these two lines or contribution of other line, other current carrying also be there? तो बेटा अदर करंट कैरिंग कंडक्टर का भी कंट्रीब्यूशन होगा, किसमें बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में। रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो सभी करंट वायर के वजह से, ऐसा नहीं कि दो के वजह से, करंट सभी किसी पॉइंट पे अगर हमें बी डॉट डी एल लिखना है तो ये जो बी आएगा बेटा, ये जो बी आएगा कैसे भी आएगा, ये सभी करंट वायर के वजह से यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। और डीएल ये लूप है जो इसका टेंजेंट बताएगा बेटा, डीएल क्या बताएगा? टेंजेंट बताएगा। तो बी डॉट डीएल जो है आपका बेटा, बी यहाँ पे क्या है? रिमेंबर दिस थिंग, बी क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑल करंट्स इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। बट in Ampere's circuitous law, V dot dl is equal to mu naught I total या I total inside बेटा, यहाँ पे inside है, mu naught I in है, ये I in क्या है बेटा? जब हम निकालेंगे इसका वैल्यू बेटा, तो ये जो टाइम्स है मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस, दैट इज व्हाट? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स करंट, टोटल करंट किसके अंदर बेटा? इस लूप के अंदर जो होगा वो होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बेटा सभी करंट की वजह से होगा। यहाँ पे किसी जगह पे बी डॉट डीएल हम लिखेंगे तो, मगर म्यू नॉट आई इस केस में जब म्यू नॉट आई इन लिखते बेटा तो वो जो करंट होगा टोटल करंट वो सिर्फ लूप के अंदर जो होगा वही होगा बेटा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ओके। अब एक और बात देखिए, जब हम कंसीडर करेंगे इस जगह पे आई इन, टोटल इन, तो सवाल यहां होता है किसको हम पॉजिटिव मानेंगे, किसको निगेटिव मानेंगे। तो बेटा जब आप लूप कंसीडर कर रहे हो, व्हेन यू कंसीडर द लूप इन एनी डायरेक्शन, दैट इज ऑन योर रैंडम चॉइस, चाहे आप लूप को इस डायरेक्शन में ले जाओ, चाहे लूप को आप इस डायरेक्शन में ले जाओ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में करना क्या है बेटा, एक बार अगर आपने लूप का डायरेक्शन चूज कर लिया, जैसे मैंने लूप का डायरेक्शन इधर चूज कर लिया, तो आप क्या करो बेटा, राइट हैंड लगा दो। राइट हैंड का जो कर्ल है बेटा वो लूप के डायरेक्शन में लगा दो, और ये जो थंब बताएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट होगा बेटा, दैट विल बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मान लिया कि मैंने चूज किया ऐसा, कैसे चूज किया, जैसे मैंने चूज किया ये डायरेक्शन में लूप बेटा, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन में चूज किया तो कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा? I2 पॉजिटिव हो जाएगा, और I3 क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि I2 थंब का डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है। तो ऐसे हालत में क्या लिखेंगे बेटा, V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका? I2 माइनस I3। इससे तो so current का पॉजिटिव या नेगेटिव, how will you choose the direction of positive or negative? Put your
right hand palm curled along the direction of loop. Choose yourself. Then the thumb will show the positive direction of current. Positive direction of current. Although Ampere's circuital law is valid everywhere, but एक और नोट कर लो बेटा, इम्पोर्टेंट बात है. Although Ampere's circuital law is valid everywhere, but when we have to calculate मैग्नेटिक फील्ड, जब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है बेटा, तो दो बात का ध्यान रखा जाता है. फर्स्ट, करंट should be steady current, steady, that is there should not be fluctuation in current. And second, highly symmetric होना चाहिए बेटा, हाईली सिमेट्रिक. हाईली सिमेट्रिक का मतलब है बेटा, जैसे ये करंट के डायरेक्शन में आपने लूप लिया, ये हाईली सिमेट्रिक होना चाहिए. हर जगह देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होना चाहिए बेटा. ये देखिए हाईली सिमेट्रिक है, ये आर डिस्टेंस पे उतना ही, आर डिस्टेंस पे उतना ही, आर डिस्टेंस पे उतना ही है बेटा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हाईली सिमेट्रिक बोलते हैं बेटा. और ये क्या है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, ये स्टेडी होना चाहिए. दो बातों का ध्यान रखना है. और ये जो लूप होता है बेटा, उसको एम्पीरियन लूप भी कहते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप. इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप. Now we will see the application of Ampere's circuital law. Of Ampere's circuital law. Application of Ampere's circuital law.
First application, to find magnetic field due to long current carrying wire. ठीक है, मान लीजिए ये आई है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, और इसके वजह से आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस में। तो आप क्या करेंगे, एम्पियर्स क्लोज लूप ले लेंगे, ऐसे क्लोज लूप ले लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी, यहाँ पे डीएल इसी ये पे, तो आप क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, ठीक है। मतलब ये करंट आई ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, करंट से ऐसे देख लिया, बी भी इधर डी एल बी, ऐसे क्लोज इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, कितना आई बी इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। यही फॉर्मूला हमने देखा था बेटा बायट-सवर्ट लॉ से। कैसे देखा था, इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाई 4πr, ठीक है। और यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, इस फॉर्मूला में देखा था, थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, थीटा 1 और ये थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा 1 अगर इनफाइनाइट है बेटा, तो ये इधर आ जाएगा 90 और ये भी उधर चला जाएगा 90। तो क्या था, म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन 90 प्लस साइन 90, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक है। बायट-सवर्ट लॉ से देखा था। और ये क्या है, एम्पियर सर्किट डायग्राम लगा। डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का बेटा, तो करंट को आप क्या करो, वायर को ऐसे पकड़ लो, करंट जिस हाथ में जिधर जाता है करंट राइट हैंड का, वो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट टू द दैट, ये क्या बोलते हैं उसको, ये सर्कुलर जो है बेटा उसका टेंजेंशियल, मतलब ये कैसा है, क्लोज्ड पाथ है मैग्नेटिक फील्ड का। टेंजेंट किसी पॉइंट पे, उसका टेंजेंट क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और ये भी बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लोज्ड पाथ है बेटा। ये इसका प्रूफ भी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लोज्ड पाथ है। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, सेकेंड एप्लीकेशन वॉल्यूम बढ़ा देते हैं थोड़ा। सेकेंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड एप्लीकेशन ड्यू टू hollow current carrying cylindrical wire, hollow current carrying cylindrical wire। ऐसा है बेटा, इसको मैं कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ, ये वायर है लॉन्स, ठीक है, ये हॉलो है, रेडियस क्या है इसका आर है। इसको आप ऐसे क्रॉस सेक्शन व्यू आप लो तो इसका
मतलब ये भी लो, साइड भी लो, इसका ऐसा दिखेगा। और करंट किधर आएगा, सरफेस पे चलेगा बेटा, बीच में तो खाली है, बीच में खाली है तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि करंट है, क्रॉस जो बताया जा रहा है बेटा ये क्या है, करंट है। अब क्या होगा, यहाँ से कब कब फाइंड करना आपको, दो कंडीशन दिया है, व्हेन आर इज लेस देन आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ये दो केस में, पहला सेकेंड दूसरा केस। तो फर्स्ट केस पहले ले लो, व्हेन आर इज लेस देन आर, ऐसा हालत में बेटा क्या होगा, एम्पियर सर्किटल ले लो, एम्पियर सर्किटल लो। ठीक है, लगाएंगे, देखो ग्रीन कलर से मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहा हूँ बेटा, ये देखो यहाँ पे ऐसा लगा लिया, व्हेन आर इज लेस देन आर, ये कैपिटल आर है बेटा, ये स्मॉल आर है। ऐसे हालत में क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो आप, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन बी इंटू 2 पाई आर, डी एल मतलब 2 पाई आर। ठीक है, अब म्यू नॉट आई इन, इधर कोई करंट ही नहीं है बेटा इसके अंदर, ये खाली है बिल्कुल, करंट ऐसे खाली जगह पे जा नहीं सकता है, जीरो आ जाएगा, सो बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। सेकेंड केस, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, तब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो बेटा, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब ये आर जो है बेटा, ये आर है ग्रेटर देन आर, ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, ग्रीन वाला दूसरा। ऐसा हालत में आप लगाइए, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, आई इन क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, ये बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ऐसा हो गया। मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, आर इधर, कहाँ से शुरू हुआ, देखो आर इज इक्वल टू आर पे यहाँ तक ऐसे जाता है। ठीक है, आर इज इक्वल टू आर पे गया, जीरो है, आर इज इक्वल टू आर तक जीरो है बेटा, और आर के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, फिर वो ऐसे करके डिक्रीज करता है, 1 बाई आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्राफ, मतलब ये हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, क्या वैल्यू है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, और ये बी का डायरेक्शन हो गया, इधर आर का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब थर्ड एप्लीकेशन देखिए, नाउ फॉर थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड में ये हॉलो की जगह में सॉलिड कर दो, बाकी सब वही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, ड्यू टू सॉलिड कंडक्ट करंट कैरिंग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल वायर, सॉलिड का आप ऐसे ही ले लो बेटा, क्रॉस सेक्शनल व्यू ही ले लो। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन है, व्हेन आर इज लेस देन आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, और बेटा इस पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे हालत में एम्पियर सर्किटल ले लो बेटा, आर इज लेस देन आर, ये आर स्मॉल है और ये कैपिटल आर है, तो जब फर्स्ट केस में व्हेन आर इज स्मॉल देन आर, तो लिखो बेटा
Applying Ampere's circular law, B dot dl is equal to mu naught I in, ठीक है। इसको दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ये बेटा जे के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि मान लो कि करंट डेंसिटी जे है, जे क्या दिया हुआ बेटा, करंट डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई बाई कैपिटल पाई आर स्क्वायर, ऐसा दिया है ये जे। ऐसे हालत में आप क्या करेंगे, बी इंटू टू पाई आर, ठीक है, डीएल बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट आई इन कितना करंट, इसके अंदर कितना करंट होगा, इसके अंदर करंट, ये ग्रीन वाले के अंदर बेटा, तो इसके अंदर करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, करंट डेंसिटी इंटू इसका एरिया कर दो, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है एरिया, सो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई गया, ये कार गया बेटा, कितना आ गया, म्यू नॉट जे बाई टू, ये आर है, म्यू नॉट जे आर बाई टू, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, ये मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो म्यू नॉट जे क्रॉस आर लिखूंगा बेटा, जे क्रॉस आर बाई टू, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ऐसे हालत में बेटा क्या करेंगे, अम्पेरियन लूप ये वाला ले लिया, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक है, अम्पेरियन लूप ले लिया बेटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करंट देखेंगे कितना करंट है इसके अंदर, ये पूरे के पूरे इसके अंदर तो बेटा उतना ही करंट होगा जितना हमने आई सेंड किया था। ये पूरा जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो बेटा इसका सिलिंड्रिकल वायर का, वो पूरा इतना है, तो पूरा करंट फ्लो होगा इसके अंदर, एम्पीरियल लूप के अंदर पूरा करंट आ जाएगा। ओके, डिड यू गेट इट? ऐसे हालत में हम लगा सकते हैं पूरा, क्या लगा सकते हैं, V डॉट डी एल एम्पीयर सर्किटल लॉ म्यू नॉट आई, ये फॉर्मूला लगा दो, आई मतलब ये V इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसमें कितना अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर बाई टू पाई आर, पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई टू आर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे। और चूंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर में कैसे लिखेंगे, वेक्टर में लिखेंगे बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, जे क्रॉस आर, ये आर एक नीचे आर आ जाएगा, अगर मैंने जे क्रॉस आर लिखा बेटा, जे क्रॉस आर मतलब ये वाला आर, स्मॉल आर के साथ में, मतलब ये कौन सा आर है, वो डिस्टेंस है जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, वो डिस्टेंस और किसका, करंट डेंसिटी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर यहाँ पे आर हमने दिया तो यहाँ पे भी आर क्या हो जाएगा, नीचे देना पड़ेगा बेटा, तो ये आर और आर स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, दिस इज नॉट वेक्टर मेथड। तो आपने व्हाट हैव यू लर्न, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन आर इज लेस देन आर देन मैग्नेटिक फील्ड, आपने क्या सीखा बेटा, म्यू नॉट जे आर बाई टू, ठीक है। और वेक्टर मेथड में क्या सीखा, वेक्टर मेथड में सीखा आपने म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू, ये था वेक्टर मेथड फर्स्ट। सेकेंड आपने सीखा व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर देन V इज इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर जे बाई टू आर। और वेक्टर मेथड में क्या सीखा, ये आपका वेक्टर मेथड है, वेक्टर मेथड में क्या सीखा, म्यू नॉट आर स्क्वायर जे क्रॉस आर डिवाइडेड बाई टू आर स्क्वायर। बाद में ये दोनों फॉर्मूला काम में आएंगे बेटा, दोनों फॉर्मूला बाद में काम में आएंगे, वेक्टर मेथड और ये इसका मैग्नीट्यूड।
अब ग्राफ इसके ऊपर देख लीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। इधर आप कर दो बेटा डिस्टेंस का, इधर करो क्या मैग्नेटिक फील्ड का, सेंटर से लेकर के। तो पहले आपने इसमें देखो ये क्या बता रहा है, B इज प्रोपोर्शनल टू, दैट इंप्लाइज B इज प्रोपोर्शनल टू R है बेटा। और ये क्या बता रहा है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड में आप देखो तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है। इसका मतलब है बेटा ये ग्राफ कैसा जाएगा, इसका मतलब है ग्राफ सीधा ऐसा जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा, जब तक R इजिकल टू R होता है, मतलब ये R इजिकल टू R, ठीक है। ये R का ग्राफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये म्यू नॉट आई बाई कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई यहाँ पे 2 पाई आर आ जाएगा बेटा। अगर आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो ये म्यू नॉट आर स्क्वायर जे बाई आर, जब ये आर का वैल्यू आर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, बी इज इक्वल टू, देन आर इज इक्वल टू आर, देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई, ठीक है, ये अंदर वाला, देन आर इज इक्वल टू आर, देन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ऐसा आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका म्यू नॉट जे आर बाई 2 है। इसके बाद फिर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है बेटा इस जगह से ऐसा जाएगा, दोनों यार इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे ये पॉइंट से अब आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4 बेटा, फाइंड दिया हुआ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट गोज अलोंग सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर। यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है बेटा, ये सिलिंड्रिकल वायर है जो बोर्ड के अंदर ऐसे जा रहा है, ठीक है। और करंट डेंसिटी दिया हुआ है, जो वेरिएबल करंट डेंसिटी है जे इज इक्वल टू जे नॉट आर दिया है, स्मॉल आर दिया है, मतलब ये रेडियस स्मॉल आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट डेंसिटी क्या होगा बेटा, वो बढ़ता जाएगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू आर बाई 2। तो आपको आर इज इक्वल टू आर बाई 2 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक आर है बेटा, और यहाँ से उसका आधा आर बाई 2, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहाँ पे एम्पेरियल लूप ले लेते हैं बेटा, और एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा देते हैं। तो उस जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू लॉज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है बेटा। अब है कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी है, करंट डेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो हाउ विल यू फाइंड, कि कैसे हम निकालेंगे इसके लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, x डिस्टेंस पे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया,
ये जो रेड कलर का देख रहे हो बेटा, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया हुआ है। जैसे अगर हमें निकालना है इसमें कितना में कितना करंट है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेंगे ऐसा, ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेंगे। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का क्या करेंगे, एरिया पता कर लेंगे कितना है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा एलिमेंट्री स्ट्रिप का, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, छोटे से एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई x dx हो जाएगा। dx इसका ब्रेड्थ है, तो 2 पाई x dx ये एरिया हो गया बेटा। अब अगर हमने j नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट आ जाएगा di। तो di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड में, di j नॉट मतलब j इंटू 2 पाई x dx, ठीक है। और j क्या है बेटा, r के साथ वेरिएबल है, मतलब x डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस में हो जाएगा j नॉट x 2 पाई x dx। 2 पाई x dx एलिमेंट्री स्ट्रिप का है ये एरिया, और j नॉट x क्या है बेटा, j नॉट r की जगह में x लिख दिया, इस r की जगह में क्या लिखा, x डिस्टेंस पे कितना होगा उसका करंट डेंसिटी, तो j नॉट x होगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये टोटल 0 से i तक, और ये कहां से कहां तक, 0 से r/2 तक, इससे करंट निकल जाएगा। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, j नॉट 2 पाई बाहर निकल गया बेटा, यहाँ पे क्या बच गया, x स्क्वायर dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया x स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, 0 से r/2 तक। सो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट सिंप्लाइज i इज इक्वल टू हो जाएगा j नॉट 2 पाई, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बेटा, x³/3, क्या आ जाएगा, x³, ये x स्क्वायर है, x³/3 इधर लिख दो, कहां से कहां तक, 0 से r/2 तक। सो अब आगे देखो, दैट सिंप्लाइज i इज इक्वल टू कितना हो गया, j नॉट 2 पाई/3, और ये x³ की जगह में r/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r³/8 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, r³/8, ये 2 4 × 8 हो गया, कितना हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू हो गया j नॉट r³/4 3 12 आ गया, j नॉट पाई r³, पाई भी यहाँ पे है, j नॉट पाई r³/12। इतना करंट आपने निकाल दिया है। इतना करंट कहाँ पे निकाला बेटा, r/2 सर्कमफ्रेंस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो वो आपने निकाल दिया। अब आप आराम से लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइए बेटा, तो क्या लिखेंगे, फ्लूइड इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू b नॉट i इन। तो b डॉट dl का मतलब है b इंटू 2 पाई r/2, r/2 डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है, r/2 लिखा, म्यू नॉट i इन कितना, अभी भी निकाला, i इन कितना होगा बेटा, j नॉट पाई r³/12, पाई r³/12। अब ये 2 2 कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये r एक r² में चला जाएगा बेटा, यहाँ पे r² में आ जाएगा, r² में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट j नॉट r²/12, ये आ गया आपका आंसर। अब आगे देखिए एग्जाम्पल 5। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू गिवन सिलिंड्रिकल कैविटीज। ये सिलिंड्रिकल कैविटीज है, मतलब ये बेटा पूरा सिलेंडर है, ठीक है, जो बोर्ड के अंदर जा रहा है, करंट इसमें बोर्ड के अंदर जा रहा है बेटा, और इसमें से एक कैविटीज
तो मतलब एक हॉलो निकाल दिया बेटा, हॉलो कर दिया इसमें से इतना r/2 रेडियस का जो है बेटा क्या किया, हॉलो कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पूरा कैविटी बन गया ऐसा। अब इतना जो करंट आ रहा है इसके वजह से आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एट पे निकालना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, 4r डिस्टेंस। सेंटर ऑफ दिस सिलेंडर से P का डिस्टेंस कितना, 4r है। रेडियस कितना है इसका, r है। फॉलो किया गया कितना, r/2 है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा। ठीक है, कंसेप्ट ये है बेटा कि अगर हमें निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे सिलेंडर के वजह से यहाँ निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे इसके वजह से। आर यू गेटिंग मी? अगर हम पूरे सिलेंडर के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, माइनस अगर इसके वजह से यहाँ पे निकालेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इसके इतना बचा हुआ की वजह से। तो माइनस के लिए यहाँ पे अगर करंट अंदर जा रहा है तो यहाँ पे करंट क्या कंसीडर करना पड़ेगा, बाहर आ रहा है बेटा, ऐसा होगा। जैसे कि हम इसको दो बार करते हैं बेटा। एक तो r रेडियस से, r रेडियस के वजह से, ठीक है, ये r रेडियस के वजह से कितना डिस्टेंस पे, 4r पे, 4r डिस्टेंस पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो क्रॉस है बेटा, क्या है, क्रॉस है। दूसरा r/2 डिस्टेंस, r/2 रेडियस का, ये जो है बेटा r/2 रेडियस है। कितना डिस्टेंस पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो P पॉइंट है बेटा, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4r है, 4r माइनस r/2, और ये कितना है, r/2 है बेटा, ये क्या है, r/2 डिस्टेंस है। 4r माइनस r/2 कितना हो जाएगा, 7r/2 हो जाएगा, 3.5r 7r/2, ये डिस्टेंस पे। दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, एक कहाँ से बेटा, 4r पे, और दूसरा 7r/2 पे। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर में जा रहा है करंट, हमने सिखाया था आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जिधर करंट जा रहा है बेटा, राइट हैंड का थंब उधर रख दीजिए, रख दिया थंब, r के तरफ ये पाम का फिंगर रखिए बेटा, तो इधर थंब रखा, r की तरफ क्या रखा बेटा, पाम का फिंगर रखा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये देखो जिधर मेरा ये आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो बेटा, अगर ये जो है, अगर ये क्या बोलते हैं, थंब का डायरेक्शन इधर है और पाम इधर है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आएगा। थंब का डायरेक्शन करंट में है और ये आर है, तो ये डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो ये आ गया, मान लिया V1 मान लिया, और यहाँ पे ये डॉट डॉट किया, मतलब करंट माइनस करना है बेटा, तो ये क्या होगा, करंट कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। अगर इधर से आ रहा है बेटा, तो इस हालत में आप क्या करेंगे, कमिंग आउट द बोर्ड, ये देखो, मतलब ऐसे निकल रहा है, वो अंदर जा रहा था, वो किधर जा रहा था, ऐसे अंदर जा रहा था, और इधर किया था, ये क्या हुआ बेटा, बाहर आ रहा है। ठीक है, लेकिन रेडियस ये बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसा है, ऐसा ये बाहर आ रहा है बेटा, ऐसे इस तरीके से बाहर आ रहा है, और ये बाहर आ रहा है, और r इधर है 7r/2, इसका मतलब V2 का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, P पे V2 का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। अब दोनों में से जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव रख दो, दूसरे को निगेटिव रख दो, उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके बेटा, फॉर्मूला क्या है वो भी हमने आपको सिखाया था। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पूरा सॉलिड सिलेंडर में से अगर निकालना है बेटा, तो μ0 ये फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों में लग जाएगा, क्योंकि आपको सिलेंड्रिकल वायर से बाहर पे निकालना है। ठीक है, तो पहले V1 निकालिए, V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिए, μ0 r बोलने से कितना, कौन सा, इसका पूरा r², तो r² ही हो जाएगा बाई 2r। r वो डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक आपको निकालना है वो हो जाएगा 4r। कितना आ गया बेटा, ये r कैंसिल हो जाएगा, μ0 आ गया। ठीक है, उसी तरह से V2 निकालिए, कौन सा डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन, सॉरी नीचे की डायरेक्शन में बेटा, कौन सा डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। उसी तरह से V2 निकालिए बेटा, V2 क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला वही लग जाएगा, μ0 यहाँ पे r/2 है, यहाँ लिखेंगे r²/4 डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर किया, 2 इंटू वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7r/2, 7, ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 7r कैंसिल हो जाएगा, μ0 ठीक है, 7 4 28 28r ऐसा आ गया बेटा।
क्या गया 28 आर आ गया, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन में है? ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे, बी नेट निकालेंगे। बी नेट इज इक्वल टू, कौन बड़ा है बेटा? ये बड़ा है, नीचे की डायरेक्शन में। आंसर क्या आ जाएगा? नेट नीचे की डायरेक्शन में म्यू नॉट जे आर बाई 8 माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 28 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट जे आर आ जाएगा बेटा, ये इसका एलसीएम कितना 56 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 माइनस, और ये 2 हो जाएगा बेटा, कितना आ गया? म्यू नॉट जे आर बाई 5 म्यू नॉट जे आर बाई 56, 5 बाई 56 म्यू नॉट जे आर। ठीक है, कौन सा डायरेक्शन है? नीचे की डायरेक्शन में। ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेटा बोलता है पी पॉइंट यहां ना दे करके यहाँ पे r बाई 2 पे, तो भी आप निकाल सकते हो। अगर बोलता है कि r बाई 2 पे आप निकालो, कहाँ पे? इनसाइड द सिलेंडर, मतलब यहाँ पे, ये जो कैविटी वाला सिलेंडर है बेटा, यहाँ पे r बाई 2 पे निकालना, तब आप कैसे निकालेंगे? तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बदल गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है बेटा? r बाई 2 पे, ठीक है। अभी पी पॉइंट आपको यहाँ दे दिए, ये पी पॉइंट है आपको जहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? r बाई 2, r बाई 2 डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। पी पॉइंट पहुँच गया। ये पार्ट ए हो गया, पार्ट बी ले लो। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट हो है r बाई 2 फ्रॉम O, ठीक है। O से कितना? r बाई 2 डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर यही काम करेंगे बेटा इसमें भी। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे के वजह से सबसे पहले पूरे के वजह से कहाँ पे बेटा? ये पूरा यहाँ पे r बाई 2 पे, यहाँ पे r बाई 2 पे निकाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंटर है, ठीक है। फिर उसके बाद किसके वजह से? छोटे वाले की वजह से कितना हो जाएगा? r बाई 2, ये r बाई 2 r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे निकाल दीजिए, ठीक है। पी पॉइंट आपका ऐसा है। एक को क्रॉस रखो, करंट अंदर जा रहा है, दूसरे को डॉट रखो, करंट क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। ये इसका नाम V1 रख दो, इसका नाम V2 रखो। इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बेटा? कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा? करंट अंदर जा रहा है, और क्या है? R इधर है बेटा, तो थंब के ऊपर जाएगा, थंब के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे ऊपर की डायरेक्शन में हो गया V1। उसी तरह से करंट बाहर निकल रहा है बेटा, बाहर निकल रहा है, और R इधर है, देखो इधर नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा बेटा। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसा रहेगा, ये डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब V1 और V2 का वैल्यू यहाँ पे फिर से लिख दो। V1 का वैल्यू, फॉर्मूला क्या लगेगा? सॉलिड सिलेंडर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फॉर्मूला लगता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, और अगर इसके सॉलिड सिलेंडर के बाहर होता है बेटा, तो क्या होता है? म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2r। ये दो फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे?
V1 का वैल्यू लिखेंगे बेटा, V1 का वैल्यू कितना लिखेंगे, ये फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर बाई 2, म्यू नॉट लिखा, जे वही है और ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है, आर बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 4 आ गया बेटा, किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में, बोर्ड के ऊपर जे कैप भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद किधर V2 का निकालेंगे बेटा, V2 मतलब इसके वजह से ये नीचे की तरफ है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आर स्क्वायर मतलब आर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, तो ये पूरा r का r इधर आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट जे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2r। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, r बाई 2 था, वो r बाई 2 लिखा था बेटा, हाँ r बाई 2 लिखा था, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट जे आर बाई 2 का स्क्वायर, इधर यहाँ पे कितना आ जाएगा, जे आर स्क्वायर बाई 4 टू द 8, यहाँ पे 8 आ गया नीचे की तरफ। अब देखो कौन बड़ा है दोनों में से, ये बड़ा है बेटा, तो ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सो नेट बी नेट किधर हो जाएगा, V1 माइनस V2 कर दो, ठीक है, V1 माइनस V2 बोलने से म्यू नॉट जे आर बाई 4 माइनस म्यू नॉट, ये भी आर कट जाएगा ना बेटा, म्यू नॉट जे आर बाई 8, फाइनल आंसर आ गया म्यू नॉट जे आर बाई 8, इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं एम्पियर सर्किट लॉ पे। एग्जांपल एग्जाम्पल 6, कैविटी का एक प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम ऐसा है कि एक सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, और हमने क्या किया, कुछ ले लो कहीं से, मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आपने क्या लिया, कुछ L ले लिया बेटा, L ले लिया, चलो या स्मॉल r ले लिया, क्या ले लिया, स्मॉल r लिया, ये सेंटर ऑफ बड़ा वाला सिलेंडर है, ये सेंटर ऑफ स्मॉल सिलेंडर है बेटा, ठीक है। सो करंट इज गोइंग इनवर्ड्स, इधर जा रहा करंट, और आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पे, ये हॉलो वाले जगह में, ठीक है,
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस स्पेस में वो बेटा कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कोई पॉइंट आपने मान लिया बेटा, इसको थोड़ा आप और ऐसे कर दो, सेंटर से लेकर के ये सेंटर यहाँ पे डाल दो बेटा, और इसका सेंटर आप यहाँ पे डाल दो ऐसे। कितना डिस्टेंस है, आर है, ये ओ सेंटर है और ये क्या है, ओ डैश है। मान लो ये पॉइंट, मान लो कि आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और इसको मान लो बेटा आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको R1 मान लो बेटा, R1 डिस्टेंस है। और ये यहाँ से ये पॉइंट जो है, जो P पॉइंट है, यहाँ से ये जो वेक्टर है बेटा वो R2 है, ऐसा R2 है। क्या है, R2 है, ऐसा। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है वो R डिस्टेंस है, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो ठीक से लिख देता हूँ बेटा, ये R2 है बेटा, ये क्या है, R1 है और ये R है, दोनों के सेंटर पे। करंट कैसे जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला वही, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला में आ जाएंगे। क्या निकाला था बेटा, किसी ये की वजह से फॉर्मूला आपको बताया था कि किसी भी सॉलिड सिलेंडर के वजह से, ये वही माइनस वाला ही चक्कर है बेटा। क्या है, माइनस वाला चक्कर जो पहले बताया था। तो किसी सॉलिड सिलेंडर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड R1 डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक R1 डिस्टेंस पे क्या होगा, फॉर्मूला म्यू नॉट JR/2, या म्यू नॉट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, J क्रॉस R, ऐसा लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो ड्यू टू कौन सा सिलेंडर, बड़े वाले सिलेंडर के वजह से ये आपका यहाँ पे है, O है, सेंटर है इसका, O डैश इसका सेंटर है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल कैविटी, करंट going inward the page about the board। ठीक है बेटा, तो म्यू नॉट J, इसके वजह से अगर R1 डिस्टेंस पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट J क्रॉस R/2। तो यहाँ पे R क्या है बेटा, R1 है, तो J क्रॉस R1/2 लिखा। करंट डेंसिटी क्या दिया हुआ है, करंट डेंसिटी दिया हुआ है J, ऐसा दिया हुआ। उसी तरह से छोटे वाले सिलेंडर की वजह से, छोटे वाले सिलेंडर की वजह से यहाँ से R2 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, ये जो P पॉइंट है R2 डिस्टेंस पे। तो अगर R2 डिस्टेंस पे हम करेंगे तो ये कैसे अंदर आने वाला, मतलब ये वाला डॉट बाहर निकलने वाला करंट है बेटा। बाहर निकलने वाला अगर करंट रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये V1 ले लिया, ये V2 ले लिया बेटा। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, यहाँ पे भी J क्रॉस R2, ठीक है, बाई 2, ये आ गया, ये V1 हो गया, V2 हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा ऐसे हालत में, नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू V1 माइनस V2 कर दो, V1 माइनस V2, मतलब म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R1 माइनस म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R2, मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस, दोनों में बेटा ये कॉमन ले लिया, J क्रॉस, ठीक है, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। और R1 माइनस R2 क्या है बेटा, देख लो आप, म्यू नॉट बाई 2
जे क्रॉस R1 माइनस R2 क्या होगा? देखिए यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R है, और इधर से ये वेक्टर R2 है, इधर से ऐसे। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से चलूँगा R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या? R, रिजल्टेंट ये R आ जाएगा बेटा, तो J क्रॉस R आ जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट आ गया बेटा। कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आ रहा है? म्यू नॉट J क्रॉस R आ जाएगा, J क्रॉस R JR/2, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? म्यू नॉट JR/2, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस JR/2, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? J क्रॉस R अगर आप करोगे बेटा तो J अंदर की तरफ है और R किधर है? इधर है। तो J क्रॉस R जब आप करोगे बेटा तो किधर आएगा? नीचे, माइनस J डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, नीचे इस तरफ। J क्रॉस R, J किधर है बेटा? अंदर है। R किधर है? अंदर है। R इधर है। तो आप J क्रॉस R करोगे बेटा तो किधर? माइनस J के डायरेक्शन में आ जाएगा, माइनस Y के डायरेक्शन में, नेगेटिव Y डायरेक्शन आप बोल सकते हो। माइनस ये दूसरा है नेगेटिव Y डायरेक्शन, नेगेटिव Y डायरेक्शन। अगर इधर X है, इधर Y है और इधर Z है, तो नेगेटिव Y डायरेक्शन में हो जाएगा। पहले क्या है बेटा? कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है बेटा। ऐसा ही रिजल्ट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था बेटा, जब कैविटी करते थे स्फेरिकल कंडक्टर में, निकाल लेते थे बेटा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो था ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे बेटा सोलेनॉइड और टोरॉइड के ऊपर। सोलेनॉइड, वैसे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था सोलेनॉइड क्या होता है बेटा। फिर एक बार हम सोलेनॉइड देखते हैं। सिलिंड्रिकल कुछ वुडन ये रखो बेटा, सिलिंड्रिकल शेप का रखो, और उसके ऊपर क्या करो? वायर को रैप कर दो, कंडक्टिंग वायर को रैप कर दो। उसके बाद उस सिलेंडर को हटा दो, तो जो बचेगा बेटा वो क्या होगा? सोलेनॉइड हो जाएगा। ठीक है, सोलेनॉइड का शेप कैसा होगा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स ऐसा होगा, ये सोलेनॉइड। इसको अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू लें तो ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा, ये डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, यहाँ से वायर से करंट ऐसे आ रहा है बेटा, ऐसे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, वायर यहाँ से आ रहा है और इधर अंदर जा रहा है, मतलब करंट यहाँ से आ रहा है और इधर अंदर जा रहा है, ऐसा आ रहा है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है बेटा।
मतलब क्या, सिलेंडर को अगर हमने ऐसे सिलेंडर रखा हुआ और इस तरीके से हमने काट दिया बेटा, तो इस तरीके का दिखेगा वो, ये क्रॉस सेक्शन है इसका भी। अब हम अप्लाई करना चाहते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। वी वांट टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे बेटा, कहीं इसके ये में, मतलब इसके एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लूप लेंगे। तो यहाँ पे लूप लिया ऐसा, स्क्वायर लूप ले लिया बेटा। चलो ये स्क्वायर लूप ले लिया, नाम दे दिया कुछ ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए, ठीक है। अब B डॉट डी एल मतलब ये 4 बार है बेटा, ये पूरा कंप्लीट लूप। तो कंप्लीट लूप के लिए आपको 4 बार एक ही वे में जाना पड़ेगा, मतलब 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। B डॉट डी एल किसके लिए, ए बी के लिए, प्लस B डॉट डी एल किसके लिए बेटा, बी सी के लिए, प्लस B डॉट डी एल किसके लिए बेटा, सी डी के लिए, प्लस B डॉट डी एल किसके लिए, डी ए के लिए। ऐसे आपने लूप को कंसिडर किया बेटा, कौन से डायरेक्शन में, मान लो ये डायरेक्शन में लूप को कंसिडर किया आपने। ऐसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इन, म्यू नॉट इन ऐसा लिखा, म्यू नॉट आई इन, आई इन। अब 4 बार में देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, यही डायरेक्शन बी डॉट डी एल, और ये लूप में ये डायरेक्शन भी लेंथ का इधर है, लेट मान लो लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एल कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, बी एल हो गया। प्लस इसमें देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और ऊपर में लेंथ का डायरेक्शन ऊपर है, ये कॉस 90 की वजह से 0 हो गया। ऊपर में बेटा सी डी में मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है बेटा, 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होता हो अभी हम डिस्कस कर देंगे। और यहाँ पे बेटा बी डॉट डी एल, ये नीचे में भी 90 डिग्री हो गया, इतना हो गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई इसके अंदर कितना करंट होगा बेटा, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे चीज डिफाइन होता है एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बेटा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा एन इंटू ये वाला लेंथ जो एल है बेटा, ये लेंथ हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न्स एन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के जगह में म्यू नॉट एन आई, एन कितना लिखेंगे, एन एल आई ऐसे लिखा, मतलब बी एल इज इक्वल टू, दैट सिंप्लाइज बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, एन एन कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सॉरी एल एल कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एन आई। ये आपका सोलेनॉइड का आइडियल केस में फॉर्मूला हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड। अगर आपसे कोई पूछे बेटा यहाँ बाहर में, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, 0 होगा, इसका आंसर आप कैसे करोगे। मान लीजिए, देखिए
एक्चुअली ये क्या है बता रहा है बेटा, ये सर्कुलर रिंग ही है, यहाँ से निकल रहा है इधर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है इधर जा रहा है बेटा, ठीक है। अब जैसे ये सर्कुलर रिंग में मैं 3 रिंग कंसीडर करो बेटा, कौन कौन सा है। मान लो कि आप ऊपर के ये सर्कुलर रिंग ऐसे जा रहे हैं बेटा, 3 रिंग कंसीडर कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं कंसीडर। एक जैसे ब्लू है, ठीक है बेटा, दूसरा है ग्रीन है, नजदीक नजदीक में, और तीसरा रेड है। और ये सब क्लोजली लूप होता है बेटा, क्लोजली स्पेस होता है, बिल्कुल नजदीक नजदीक में रहता है, तो दैट इसका इफेक्ट होता है कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट होता है बेटा, वो क्या होता है, 0 हो जाता है। करंट कैसे आ रहा है बेटा, यहाँ से निकल रहा है, मतलब करंट ऐसे आ रहा है, मान लो करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है सपोज, ठीक है। अब जैसे ये बीच वाले, जैसे कि कोई अगर रिंग है बेटा, तो मैं बात करूं कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो ये बीच में तो ऐसा रहता है बेटा, ठीक है। बाकी आप कैसे निकालते हो, इस जगह पे अगर निकालना है तो ऐसे, ये राउंड राउंड ऐसे इस तरीके का बेटा ऐसे निकलता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 फीड होता है, क्लोज होता है बेटा, मतलब ऐसे इस तरीके से ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ऐसे हालत में अगर ये ऐसे आ रहा है तो बेटा करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, अगर आप ऐसे करते हैं, ठीक है, ये करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ जाएगा बेटा, ऐसे, मतलब इस जगह अगर मैं बिल्कुल इसके ऊपर करूंगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, तो थोड़ा सोचो ये कैसे जाएगा, अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो ये कुछ कैसे जाएगा बेटा, मतलब ये ऐसे सोचना पड़ेगा आपको कि ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसे जा रहा है बेटा तो ऐसे निकलेगा, मतलब कैसे, देखो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे चला जाएगा बेटा, ठीक है। किसके वजह से, ब्लू वाले की वजह से, ब्लू वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ वो इधर हो गया, ग्रीन वाले के मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ इस पॉइंट पे वो किधर हो गया, ये डायरेक्शन में हो गया ग्रीन वाले की वजह से, और रेड वाले की वजह से डायरेक्शन किधर हो जाएगा बेटा, इस तरफ ही आएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमने ऐसे लिया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, मतलब किधर होगा, रेड वाले की वजह से बेटा ये डायरेक्शन में चला जाएगा ये। और इतने क्लोज स्पेस होता है बेटा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का सब मिलके इसके बराबर हो जाता है, ओके। इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो आएगा बी नेट, वो क्या होता है बेटा, 0 हो जाता है। अब ऐसे केस में जब क्लोजली स्पेस होता है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर हम 0 कंसीडर करते हैं, ओके। नेक्स्ट टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है बेटा, जो आपने सोलेनॉइड लिया ना बेटा, सोलेनॉइड उसी को मोड़ दो पूरा, टोरॉइड हो जाएगा। सोलेनॉइड जो बनाया था आपने उसको सर्कुलर बना दो बस, वो क्या हो जाएगा बेटा, टोरॉइड हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड फिर सर्कुलर होगा उसका, ठीक है। तो टोरॉइड कैसे होगा, ये मान लीजिए आप कुछ ऐसा बना रहा हूँ,
ये होलो रिंग है, ऐसा होलो रिंग है। और इस होलो रिंग पे क्या क्या है, वायर रैप किया हुआ है, बहुत सारे वायर रैप किया हुआ है। तो मान लो आपको मैं वायर रैप कर देता हूँ, ऐसा हो गया। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेंगे। दिस इज टोरॉइड। टोरॉइड में क्या है बेटा, हॉलो सर्कुलर रिंग है, उस पे वायर रैप किया हुआ है, ठीक है। और आप इसको व्यू कैसे कर सकते हो, जो आपका सोलेनॉइड है बेटा, उसी को आप क्या करना है, सर्कुलर बना देना है बेटा। तो वो क्या हो गया, आपका टोरॉइड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर चलेगा बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होगा, सर्कुलर होगा। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए हम क्रॉस सेक्शनल व्यू हम ले लेते हैं। यहाँ पे कैसे ले लेंगे, देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू मतलब है एक साइड से मान लो करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, ये करंट निकल रहा है। तो ये मान लो बेटा इधर से ऐसे है ना, इस साइड से करंट निकल रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे करंट यहाँ से निकल रहा है, जा रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इधर जा रहा है, मतलब ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, करंट इधर जा रहा है, मतलब ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, यहाँ सब क्या हो जाएगा, डॉट। ये सब डॉट हो गया बेटा, बाद में सब डॉट है। ठीक है, करंट यहाँ से निकल रहा है और इधर जा रहा है, ये क्रॉस कर दो इधर। और इधर क्रॉस करो बेटा, क्रॉस करो। क्रॉस का मतलब है यहाँ से निकल रहा है, इसके अंदर जा रहा है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे निकालना है, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस पे। आप एम्पेरियन लूप ले लेंगे बेटा, यहाँ पे एम्पेरियन लूप ले लिया आपने, ये वाला। ये लूप कौन सा लूप हो गया, एम्पेरियन लूप, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। अगर आर डिस्टेंस पे आपने एम्पेरियन लूप लिया बेटा, ठीक है, तो कितने करंट आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका n डिफाइन जो हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये n/2πr हो जाएगा, n/2πr, पूरा लेंथ n/2πr, n ऐसा होगा।
अब अगर एम्पीरियल लूप ले रहे हैं बेटा तो इसमें आप क्या लिखेंगे, फिर फॉर्मूला वही एम्पियर सर्किट लॉ लगा दो आप, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, I इन, तो B इंटू 2πr लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट, I कितना हो जाएगा बेटा, ये I कितना हो जाएगा, NI कितना हो जाएगा, NI लिख दिया, NI, सो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स लेट N है पूरा का पूरा, N बाई 2πr I, और ये क्या हो जाएगा आपका B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, यहाँ पे हमने लिख दिया N इज इक्वल टू N बाई 2πr, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, म्यू नॉट NI आ रहा है। इन द केस ऑफ टोरॉइड आल्सो वी गेट म्यू नॉट NI। तो ये हो गया बेटा आपका एम्पियर सर्किट लॉ और उसके ऊपर एप्लीकेशंस। ओके।